जेम्स फर्स्ट कौन थे? हम जानते हैं कि जो एलिजाबेथ थी वो ट्यूडोर पीरियड की लास्ट मोनार्क थी और वो एक वर्जिन क्वीन थी, इसलिए उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। तो उनकी डेथ के बाद ये समझ पाना या ये तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि नेक्स्ट मोनार्क कौन होगा। इसीलिए किंग ऑफ स्कॉटलैंड जेम्स सिक्स्थ को इंग्लैंड का मोनार्क बनाया गया। अब रिलेशन में ये कैसे एलिजाबेथ के साथ थे, इसे इस तरीके से बताया जा सकता है कि जो एलिजाबेथ के जो फादर थे हेनरी एट, उनकी एक बहन थी मार्गरेट ट्यूडोर, जिन्होंने शादी की थी जेम्स फोर्थ से, जो कि जेम्स फोर्थ स्टुअर्ट थे। उनका जो बच्चा हुआ वो जेम्स फिफ्थ हुए और उनके बाद मैरी, और इनके बाद जो स्कॉटलैंड के किंग बने वो थे जेम्स सिक्स्थ। और यही जेम्स सिक्स्थ जब राजा बने इंग्लैंड के तो वो बने जेम्स फर्स्ट। और इस एज का नाम जेकॉबियन एज क्यों है? क्योंकि जो नाम है जेम्स, उसको अगर हम लैटिन भाषा में बोले तो उसका मतलब है जेकॉब, इसलिए इस एज को जेकॉबियन एज कहा जाता है। James sixth and first was the king of Scotland as James sixth and king of England and king of Ireland as James first. He was the first monarch to be called the King of Great Britain. He ruled in Scotland as James VI from 24th July 1567 until his death, and he ruled in England and Ireland from 24th March 1603 until his death. His reign was important because it was the first time England and Scotland had the same monarch. He was the first monarch of England from the House of Stuarts. हाउस ऑफ स्टुअर्ट्स का मतलब है शाही खानदान से होना। The previous English monarch had been Elizabeth I, and she had died without any children, so English agreed to have a Scottish monarch because James was the son of Mary, Queen of Scots. Thus, the closest relative Elizabethan had, by being king of both, he created a personal union. James fought often with the Parliament of England. In addition, he did not use the kingdom's money well. While James was the ruling, and Scottish and English governments were quite stable. After James died, his son Charles tried to rule in the same way as James but caused the English Civil War. At the end of the war, in 1649, Charles was executed. यहाँ एक छोटी सी बात जो समझने की है वो ये है कि एलिजाबेथन टाइम पर जो एटमॉस्फेयर था, जो चीजें थी, वो सिर्फ बढ़ती थी। मतलब वो एक बेस्ट क्वीन थी, बेस्ट रूलर थी। उनके बाद आए जेम्स ने भी बहुत अच्छे से अपने रेन को संभाला था, अपने शासक को बहुत ही पुख्ता तरीके से संभाला था, और एक ही जगह पर नहीं, आयरलैंड में, स्कॉटिश में और इंग्लैंड में, साथ ही साथ वहां के गवर्नमेंट्स को भी बहुत अच्छे से रूल किया था। इनके बाद इनके बेटे ने शासन जब संभाला, वो उन्होंने कोशिश की चार्ल्स ने, पर वो उतने अच्छे से शासन को नहीं संभाल पाए जिस तरह से एलिजाबेथ ने संभाला था और उनके बाद जेम्स फर्स्ट ने संभाला था। James was very well educated and good at learning. He helped people in England and in Scotland to study things such as science, literature, and art. James wrote Daemonology in 1597, The True Law of Free Monarchies in 1598, Basilicon Daron in 1599, and A Counterblast to Tobacco in 1604. He sponsored the Authorized King James version of the Bible. James believed in witchcraft. When he read the discoveries of witchcrafts,
he ordered all the copies of book to be burned. The king had an importance with the first English settlers. The first Parliament English established settlement in North America was made under the charter granted by James to Sir Thomas Gates and others in 1606. Jacobean period. This period starts from 1603 to 25. यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम हैं जो कि एलिजाबेथन एज में भी थे और जेम्स फर्स्ट के रेन में भी थे, जो कि थे शेक्सपियर, बेन जॉनसन, बेयरमाउंट एंड फ्लेचर एंड जॉर्ज चैपमैन। ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे याद रखने के लिए इस पूरे इंट्रो में। अब आगे हम पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड के जो भी खास राइटर्स थे और जो भी उनके स्पेशल राइट्स थे और वो किस सन में थे, इनके बारे में। So let's start with John Donne. John Donne was from 1572 to 1631, and John Donne was the metaphysical poet. His first write was Divine Poem from 1607. Then he wrote Baithnets or Baithnetos in same year. Then two anniversaries on anatomy of the word in 1611 and of the progress of the soul in 1612. Pseudo in Martyr in 1610. Ignatius in his Conclave in 1611. Devotions upon emergent occasions in 1623, Death's Duel in 1623, Songs and Sonnets in 1633, A Valediction Forbidding Morning, The Flea is his most important work, The Sun Rising, and The Good Morrow. These were some works from John Donne. Our next writer is George Herbert from 1593 to 1633. He was also a metaphysical poet. His works were The Temple in 1633. This work was a collection of religious poems. A Priest to the Temple, a prose that offers particles wisdom of clergy. The Affliction, this was a poem. Our next writer is Richard Crasher from 1613 to 1649, and he was also a metaphysical poet. His works are Epigrammatum Sacrorum Liber in 1634. This was a book of sacred. Epigram is a collection of Latin words on scriptural subjects. Steps to the Temple in 1646. It was also a sacred poem. Next writer is Henry Woughton from 1621 to 1695. Poems with the 10th satire of Venal Englished in 1646, Silix Saintlians in 1650. इसका मतलब है The Fairy Flight. The Retreat, this was a poem. The next writer is Andrew Marlowe. Andrew Marlowe was from 1621 to 1678. He wrote Upon Appleton House, to my Lord Fairfax, an Horatian ode upon Cromwell's return from Ireland, to his coy mistress, the definition of love, young love, the character of Holland and Bermudas, also a dialogue between the soul and body.
यहाँ से हम जिन राइटर्स के बारे में और राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं वो कैरेक्टर्स हैं और वो पोइट्स हैं जो कि कैरोलाइन एज में, जो कि 1625 से 1649 तक थी, और कॉमनवेल्थ एज जो कि 1649 से 1616 में थी। इस टाइम पीरियड में भी ये जो लेट रेनेसा पीरियड था, जो कि 1625 से 1660 तक का था, ये वाले पोइट्स इस पीरियड में भी थे, जो कि लेट रेनेसा में भी थे, जो कि हैं जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रेशियो, एंड्रू मार्ले, हेनरी वॉगा, रॉबर्ट हैरिक, इट वॉज अ कैरिवियर पोइट। ये वो पोइट्स हैं जो कि इस एज में भी थे। Robert Herrick from 1591 to 1674. This was a Calaveras poet and he wrote so many Calaveras poems. Asperites are the work, both human and divine, of Robert Herrick. It was in 1648. Noble numbers, a group of religious numbers. Thomas Carew, he was from 1594 to 1640. He was also a Cavalier poet. He wrote Column Britannium. It was a Moscow in 1634. A Rapture, The True Beauty. These were the works of Robert. Next one is John Suckling. He was from 1609 to 1642. He was also a Cavalier poet. Account of Religion by Reason in 1637. This was a prose. Algora in 1638. ये एक प्ले था। नेक्स्ट राइटर हैं रिचर्ड लवलेस। Richard Lovelace was from 1618 to 1657. His comedy work was The Scholars. His tragedy work was The Soldier, and the poems were To Athlia or Lucasta. Next one is John Milton from 1608 to 1674. He wrote Allegro in 1631, El Pecenso in same year, A Mask present at Ludo Castle in 1634. This was a commonly known as Comus, and it was also a Moscow play. Lycidas in 1638, and it's a pastoral elegy. Poems of Mr. John Milton, both English and Latin, in 1645. On the Lake Misser in Piedmont in 1655. Paradise Lost in 1667, and this was published in Restoration period. Paradise Regained in 1671. Samson Agonister in the same year. His prose works were Reformation in 1641, Of Education in 1644, Areopagitica or Areopagitica in 1644, A Treatise of Civil Power in 1659, History of Britain in 1670, The True Religion in 1674, Epistolae Familiaris in 1674, A Doctrina Christiana in 1823. अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि जैकोबियन एज में स्टार्ट हुई, जो एलिजाबेथन एज में थी और जो कैरोलाइन एज में होंगी। मेन हम जो फोकस करेंगे इस जगह पर वो जैकोबियन एज में जो चीज़ें स्टार्ट हुई उनके ऊपर करेंगे। एलिजाबेथन एज में मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सोनेट्स लिखने स्टार्ट हुए थे। इन दिस जैकोबियन एज हेरोइक कपलेट्स लिखने स्टार्ट हुए, वर्स, सटायर,
एसेज, बायोग्राफीज, ट्रांसलेशंस, साइंस एंड लर्निंग्स स्टार्ट हुई। एक और नई चीज़ थी जो कि अमेरिका के वर्जीनिया जगह की थी, उस टॉपिक पर उसके बारे में लिखना स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये एक बहुत ही नया टॉपिक था, एकदम क्लीन था, इससे पहले अनटच्ड था, इससे पहले इसके बारे में ना किसी ने बात की थी, ना ज़्यादा किसी को पता था, ये एक नई जगह थी। और साथ साथ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर, रिलीजियस, ट्रैवलिंग्स, और इसी पीरियड में लिखना स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी के बारे में और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में इस टाइम पीरियड में लिखा गया था या लिखना स्टार्ट हुआ था। The King James First Version, also known as the King James, the authorized version of the Bible, translation of Bible, जो कि किंग जेम्स फर्स्ट वर्जन ने की थी इन 1607 to 1611। 4 साल लगे इनको इसको एडिट करने में और इसको ट्रांसलेट करने में, और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1769 में बेंजामिन ब्लेने ने की थी। इस जगह पर हम समझेंगे कुछ राइटर्स के बारे में और उनके राइट्स के बारे में, चाहे वो किसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड थे या वो उन टॉपिक्स के नाम हों। फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस बैकन, इन्होंने लिखा था हिस्ट्री, ट्रैवल, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, ऑल्सो रेफर्स एज रेनेसा मैन। जो फ्रांसिस बैकन थे इनको रेफर किया जाता है रेनेसा मैन के नाम से भी। और इन्होंने लॉ के बारे में लिखा, गार्डनिंग के बारे में लिखा, फैमिली के बारे में लिखा, हेल्थ, साइंस एंड एजुकेशन के बारे में। रॉबर्ट बर्टन, इनका एक स्पेशल राइट था द एनाटॉमी ऑफ मेलचालो इन 1621। ये एसेज थे। पोइट्री में द स्पेंसरियंस जो थे उन्होंने लिखा था। स्पेंसरियंस वो थे जिन्होंने स्पेंसर को फॉलो किया था। उनके राइट्स कुछ ऐसे थे: पेस्टोरल, ट्रेडिशन, नैरेटिव पोइट्री, पॉलिटिकल, मॉरल, रिलीजियस एलिगरीज। फिनिस एंड गिल्स फ्लेचर, ये 2 भाई थे, इन्होंने लिखा था सॉरोज जॉय। अब हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट के बारे में। मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड और अबव इमेजिनेशन। अगर इसके सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन दी जाए तो वो कुछ इस तरह होगी: द ब्रांच ऑफ फिलोसफीज दैट सिस्टमैटिकली investigates the nature of first principle and problem of ultimate reality. It includes the study of being, ontology, and the study of structure, cosmology. ये सिंपल वर्ड्स में मेटाफिजिकल की या मेटा की डेफिनेशन है। लाइफ ऑफ एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स सैमुअल जॉनसन। यहाँ सैमुअल जॉनसन ने कुछ राइटर्स के नाम दिए हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है, यानी उनकी खासियतों के बारे में बताया है, और साथ ही साथ उनके कुछ खास वर्क्स के बारे में बताया है। फर्स्ट है जॉन डन, जिनकी सबसे खास पोएम थी टू ही स्काई मिस्ट्रेस। जॉर्ज हर्बर्ट, ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल थे और इनकी खास पोएम थी द फ्ली। एंड्रे मार्लो, यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमेजिनरी, जो इनका सबसे खास हिस्सा था। ये अपनी इमेजिनरी को बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से यूज करते थे और इनका खास वर्क था वैलिडिक्शन और वैलिडिक्शन। सेंट रॉबर्ट साउथवेल, जो कि बहुत अच्छे से यूज करते थे फ्रीक्वेंट पैराडॉक्स का, और इनका खास वर्क था डेट बी नॉट प्राउड। रिचार्ड क्रैशर, ये एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स रखते थे और इनका खास वर्क था द कॉनोनाइजेशन। थॉमस थ्रेम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है याद रखने के लिए कि ये ही वॉज नॉट regranted as a genre of poetry.
In fact, the main poets did not read each other's work and did not know that they were even part of classic fiction और क्लासिफिकेशन. मतलब ये जो दो हमारे लास्ट के थॉमस थ्रीजिम और हेनरी वॉगन थे, ये ऐसे रिगार्ड करे जाते हैं जैसे ये रियल पोइट्री लिखते थे. इस जर्न की जो मेन पोइट्रीज होती थी, जो रियल पोइट्रीज होती थी, वो पोइट्स लिखते थे जिनको पता भी नहीं होता था एक दूसरे के वर्क्स के बारे में. फिर भी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ, एक क्लासिक फिक्शन के साथ और एक क्लासिफिकेशंस के साथ जुड़े होते थे. उनके जो वर्क्स होते थे लगभग एक जैसे और एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलते थे, एक पावर में चलते थे. अब बात करेंगे बेन जॉनसन की. इनके वर्क्स थे द पोएस्टेस्टर, द एल्केमिस्ट. ये द वर्क एल्केमिस्ट जो था ये बहुत ही खास था और बहुत फेमस भी हुआ. ही वॉज अ पोएट, satirist and also a dramatist. Includes odes, songs, poems and plays. Also he wrote Every Man in His Honor, Humor, Every Man Out of His Humor, The Case in Altered. ये बेन जॉनसन के वर्क थे और इनकी जो वर्क स्टाइल थी वो थी. Now we will study some features in this age. People likes to see realistic plays which directly linked with or to the life of leaves. जब भी बात आती है ड्रामा की तो एक नाम दिमाग में आता है जो कि है शेक्सपियर का, क्योंकि ड्रामा को इंट्रोड्यूस करने में लिटरेचर में सबसे बड़ा हाथ है शेक्सपियर का. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन थीम्स ऑफ ड्रामा इन जैकोबियन एज, जो कि थी लस्ट, एडल्टरी, करप्शन, डेथ, सिकनेस, एक्सप्लॉयटेशन, cruelty, hypocrisy, dishonesty, family, and crisis. We see a transition from a comic drama of Elizabethan age stage led by Shakespeare toward a harsh kind of satire led by Ben Jonson, which means इस एज में उन टॉपिक्स के ऊपर भी लिटरेचर लिखे जाने लगे थे जो कि इससे पहले तक या इससे पहले की एजेस में लिखे नहीं जाते थे और उनके बारे में खुल के बात नहीं की जाती थी और उन्हें बहुत ही पर्दे में रखा जाता था. इस एज में उन टॉपिक्स के बारे में खुल के बात की गई, न सिर्फ उन्हें एक पॉजिटिव मैनर में आगे रखा गया ताकि जो लोग उनके बारे में नहीं जानते या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं उनकी नजरें खुले, आंखें खुले, सही गलत का फर्क समझ में आए. यहाँ पर हम एक मेजर डिफरेंस देखते हैं कॉमिक ड्रामा के बीच में जो कि एलिजाबेथन एज में था, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लीड किया गया था, से बदलता हुआ एक ऐसे लिटरेचर की तरफ जो कि बहुत ही हार्श था, बहुत ही हार्श तरीके का था, जो कि जिसमें सटायर था, जो कि लीड किया था बेन जॉनसन ने. मतलब बेन जॉनसन के जो ड्रामास थे उनमें जो रियलिटी ऑफ लाइफ थी और जो लीव्स थी, जो लोगों के साथ जर्नल वे में होता था, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताया गया और खुल के इस पे बात की गई और लोगों के आगे उन बातों को रखा गया. नाउ मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा इन जैकोबियन एज. इस एज में जो टाइप्स ऑफ ड्रामा थे वो कुछ इस तरीके से थे. रिवेंज ट्रेजिडी थी, सिटी कॉमेडी थी, ट्रेजिक कॉमेडी थी और मॉस्क्यूज थे. पहले बात करते हैं रिवेंज ट्रेजिडी की. रिवेंज ट्रेजिडी में वायलेंस होता था, ब्लडशेड होता था. फॉर एग्जाम्पल हैमलेट जो कि शेक्सपियर का वर्क था, वुमेन बिवेयर वुमेन, द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ मेल्फी, द चैलेंजिंग और चैलेंजिंग, टिस पिटी शी इज अ होर. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे रिवेंज प्ले के. सिटी कॉमेडी में होता था इट डील्स विद कॉमन लाइफ ऑफ लंदन पीपल. सिटी कॉमेडी में
वो नेचुरल चीजें आगे रखी जाती थी जो कि नॉर्मल लोगों की लाइफ से ही इंस्पायर्ड होती थी। और जो थीम्स होती थी वो होती थी एडल्टरी की, अनहैप्पीनेस की और अनहैप्पी मैरिजेस के बारे में, डेब्ट्स के बारे में और कक्लोड्री के बारे में। कक्लोड्री होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एग्जाम्पल्स हैं द नाइट ऑफ द बर्निंग पेस्टिल बाय बियरमाउंट, और एक और एग्जाम्पल है बर्थ फेयर बाय बेन जॉनसन। बात करते हैं ट्रेजिक कॉमेडी की, जिसको शेक्सपियर ने बनाया था, जिसमें ट्रेजिडी भी होती थी और कॉमेडी भी होती थी। एक स्टेज पे दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होती थी। इसका एग्जाम्पल है द फेथफुल शेफर्डनेस, फिलेस्टर लव लाइज अ ब्लीडिंग। मॉस्किल्स के बारे में बात करें तो ये कोर्ट में जो पेश की जाते थे चीजें जो भी, या फेस्टिवल्स में भी, उनके बारे में बात करता है, जैसे द केस इन एथरॉट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड द एल्केमिस्ट। अब बात करेंगे जॉर्ज चैपमैन की। इनके वर्क्स थे होमर, which is translated work, The Blind Beggar of Alexandria, Eastward Hugh with Johnson's and John Marston, ये एक combined work था दोनों का। Beaumont and Fletcher showed London societies their manners, class, soberness, and they both together wrote 52 collaborated works. ये मैंने कोशिश की है कि जैकोबियन एज की सारी बातों को एक जगह पे एक साथ आप सबको क्लियर बता पाऊं, समझा पाऊं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो में कुछ ना पसंद आया हो या कुछ पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much for watching. Have a good day.